میں سارے حاضرین سے گزارش کروں گا ایک ایک اسٹیپ ہے اینڈ سلام کر اور امید کروں گی کہ یہ پروگرام ہمارے لیے کوئی خاص ملاقات کے سبب رہے گا. دن پہ آپ تمام دوستوں کا آپ تمام اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ کالج ایڈمنسٹریشن جو یہاں پر موجود ہے ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گی کہ آپ تمام دوستوں کا قیمتی وقت لیتے ہوئے آپ یہاں پر آئے, آپ تشریف آور ہوئے اور آپ کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صبح وجعله غساسرك لليسرى فذكر النفعت ذكرى اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا. خاص نہ ہو لیکن میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, ہواؤں میں سوالا دل بدل دے, دل کی دنیا فرما دل بدل دے, ہے باللہ من الشیطان الرجیم صبح وجعله غساسرك لليسرى فذكر النفعت ذكرى اسم. اور اختصار کے ساتھ میں اپنی بات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. ہمارا جو تھیم ہے آج کا وہ ہے رول آف میڈیا, مس انفارمیشن کے حوالے سے, اور اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے. گوڑون باخ چیز صحافت پنن ایٹیکیوٹس, اس کے اپنے آداب ہیں. جیسے ابھی طارق صاحب بتا رہے تھے, یہاں میں سمجھتا ہوں گرو ہی ہے, ٹیچر ہے, تصدق صاحب بیٹھے ہیں, تو یہ مجھ سے اس بارے میں زیادہ جانتے ہیں. اس کے اپنے کچھ ایٹیکیوٹس ہیں, کچھ آداب ہے اس کے. تم آداب چھو اسلام تے والا. وہ سب سے پہلے قرآن کی 3 آیتوں پہ میری نظر پڑی کل شام کو جب انفارمیشن ملی کہ یہاں پہ پروگرام ہونے والا ہے, تو قرآن کی 3 آیتیں میرے ذہن میں آئے. سب سے پہلے وہ 3 آیتیں میں آپ کو سناتا ہوں. مجھے نہیں لگتا اس کے بعد مجھے مزید کچھ آپ کو بولنا ہو, یا مزید کچھ ضرورت پڑے گی آپ کو نصیحت کرنے کی. قرآن کی پہلی آیت جو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 70 ہے, ورس نمبر 70. اللہ تعالیٰ شو فرماون, یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یل تو قرآن اسمز تو کہاں آیت وچھو رب چھو ایمان والن مخاطب, یا ایوہ الذین آمنوا. ام پت یمی عملی ہند اللہ تعالیٰ حکم دیر سا عمل چی ایمان اسمز اضافک سبب آسا. تو سمجھ جو اس سے پتہ چلتا ہے آپ کی جو یہ صحافت ہے نا یہ عبادت ہے. لیکن اگر آپ یہ بات سمجھو, یا آپ کو بلکہ جو مختلف میڈیا آرگنائزیشن سے یہاں پہ چیلے نمائندے آئے ہیں, اور میری نظر جا رہی ہے فیاض لولو صاحب پہ, ہمارے زلفی مسعود ہے, عارف صاحب ہے, محترمہ عذرا جی ہے, ہماری عشرت جی ہے, اور عامر صاحب, اور دیگر کئی ایسے افراد جن پہ جو دور دور بیٹھے ہیں. آپ کو میری طرف سے پیار بھرا سلام. چونکہ جیسے ہمارے اینکر نے کہا کہ جو آج کے ٹاپک کا عنوان تھا سیو یوتھ اینڈ سیو فیوچر, ظاہر سی بات ہے اس موضوع پہ بات ہو گئی, لیکن ایک کشمیری سلوگن اس بینر پہ لکھا تھا کہ سمکھن کشمیری میں ہے, اور سمکھن کا مطلب کیا ہے آپ کو سب کو پتا ہے, اور بیدار گسل. اور بیدار مجھے لگتا ہے کہ ہم نہ صرف آڈینس بیدار آج ہو چکی ہے, بلکہ مبشر صاحب اور طارق صاحب نے جو باتیں کہی اس پہ میڈیا پہ زبردست تابڑ توڑ حملہ ہوا. کوشش ہم کریں گے, ہم آج صرف بیدار ہو گئے, اور جو میڈیا کا فرض ہے,
जो एक सहाफी का फर्ज है, कोशिश हम करेंगे एक रिफॉर्म लाने की, और अगर हमसे कहीं गलतियां हो, चूंकि हम भी इसी प्रोफेशन से है, उम्मीद करेंगे कि उसमें एक तो हम बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो माहिरीन ने कहा है कि व्हाट आर द एथिक्स ऑफ द जर्नलिज्म, चूंकि मुबशिर साहब और तारिक साहब जब महफिल में बैठे हैं, थोड़ा बहुत मैं वजाहत करने की कोशिश करूंगा। ये 2002 की बात है। आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी and I got the admission in the Department of Mass Communication and Journalism. उन दिनों जबरदस्त क्रेज हुआ करता था। He himself said people mostly rely on the दूरदर्शन and 7:30 की जो कश्मीरी और उर्दू में खबरें होती है, आज भी होती है, और जबरदस्त क्रेज हुआ करता था। अगर आपको याद है 2003-2004 में यहाँ पे आप छोटे थे, आपके वालिद साहब को पता होगा, यहाँ पे वो वॉल्टेगू का इंसिडेंट हुआ था जिसमें बर्फ के तोदे के नीचे ITBF के जबरदस्त वो 12 नौजवान आए थे और उनकी मौत हो गई थी, और फिर वॉल्टेगू नाड में एक बर्फीला तूफान आ गया था। तो शाम को जब हमारा डिस्पैच आता था 7:30 की खबरों में, अनंतनाग से हमारे नुमाइंदे तसद्दुक की रिपोर्ट, जब हम रिपोर्टिंग करते थे तो पीपल यूज्ड टू गिव अस द सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड सेंस ऑफ रेस्पेक्ट। हम उस रेस्पेक्ट से ज्यादा एनकरेज होते थे। आजकल चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, nobody wants to lag behind। जाहिर सी बात है, जब आपके हाथ में अच्छी फुटेज हो और आप चाहते हो कि ये सामने आए और जल्दी आए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इस दौड़ में है क्या अपनी TRP कमाने के लिए वो कोई भी कंटेंट, हालांकि मैं सबकी बात नहीं करूंगा, वो सामने लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुद्दा और मकसद ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लाइक्स मिले, व्यूज मिले और आपकी अप्रिसिएशन हो। बट देन जैसे मुबशिर साहब ने कहा कि वी आर गाइडेड बाय अ सेट ऑफ रूल्स। I mean, the ethics of the journalism say that you can't report against the Constitution of India. It is the ethics of the journalism. वो किसी ने खूब कहा है, एक बुजुर्ग जो है उन्होंने कब्रिस्तान पे नमाज अदा की, तो यहाँ से एक जबरदस्त उम्र रसीदा और स्कॉलर जा रहे थे, उन्होंने कहा उनको कि आपकी नमाज अदा नहीं होगी, तो वो वहां से आर्ग्यू करने लगे। इस सूरत हाल में आप एक सहाफी पे जिसपे पुल्स एंड प्रेशर्स from corporate sector, from the administration, from the people, from the organization, he is himself an editor, but the moment he needs the footage from this correspondent, he pulls him, he hammers him, hey, where is the footage? So therefore मैं काफी खुश हुआ आज, क्योंकि मौजू इतना बड़ा है, इस पे जितनी भी बात हो वो कम है, लेकिन आपकी इन्वॉल्वमेंट जो हमारे नौजवान है, नौजवान इज द फ्यूचर, और काफी अच्छा लगा मुझे कि आपकी जो सीरियसनेस मैंने देखी। 3 घंटे में हम दाखिल हुए, लेकिन आप में से माह रमजान का मुतबरक महीना है और पहला रोजा, जाहिर सी बात है वो सताता भी है, क्योंकि when you get adapted 5वें 6ठे दिन के बाद हम शेर की तरह होते हैं, लेकिन पहले 5 दिन हम महसूस करते हैं, लेकिन आप में से एक भी नौजवान जो है वो हाल से बाहर नहीं निकला। तो मेरी आपसे गुजारिश है, यही सीरियसनेस हर एक मामले में हम दिखाने की कोशिश करेंगे, अपने फ्यूचर के हवाले से, सोसाइटी के बेहतरी के हवाले से, क्योंकि हम सारे एक ही पेज पे हैं। हम चाहते हैं हमारे जो इर्द गिर्द माहौल है वो बेहतर बने। बेहतर कैसे बने? बेहतर वी हैव टू सेट द एग्जांपल एंड वी हैव टू सेट इट फ्रॉम योरसेल्फ, आवरसेल्व्स। और जाहिर सी बात है, जब हम अपने आप को मिसाल लेके सामने लाने की कोशिश करेंगे, मुझे लगता है कि हमारा समाज बेहतर होगा। पार्ट्स पे काइंड ऑफ इंटरेस्ट दिखाया। मैं बस एक ही बात कहूँगा, एज एन ऑर्गेनाइजेशन सेव यू सेव फ्यूचर फाउंडेशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन हर जगह पे, हर डिस्ट्रिक्ट में हमने प्रोग्राम्स की, सेमिनार्स की, एक्टिविटीज की, एंड बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स हम चला रहे हैं। बट अनंतनाग में हमारा पहला एक्सपीरियंस था, तो मैं एक ही बात कहूँगा कि हमारे जो पहले, आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन, स्पेशली तरन्नुम, द वे यू host this event, it was amazing, seriously I appreciate you. Anika, it was knowledgeable, जिस तरह से आपने elaborate किया, it was amazing. Tariq साहब, तसद्दुक साहब, and as a senior media panelist, journalist हमारी कश्मीर वादी कश्मीर के, जितना आपका contribution है, thank you so much for being here today. And one more thing, ये मैं जरूरी कहना चाहता हूँ, in 2014 I was in 12th class, right now I'm 28 में होने वाला हूँ। मुबशिर वेरी साहब को मैंने कॉल किया था, कुछ मसाइल पेश आए थे, मैं मिला नहीं था इनको कभी, बट इनकी
तकरीरें, नात शरीफ, जो भी चीज़ें होती थी, कुछ मसाइल हुए थे, मैंने उनको कॉल किया कि फैमिली में एक मसला हो गया, मैं क्या करूं। उन्होंने एक बात बोली, मैंने बोला किसी से झगड़ा हो गया फैमिली में। बोला क्यों झगड़ा हो गया। मैंने कहा कि किसी चीज़ पे, किसी ओपिनियन पे, आइडिया पे, लेकिन मैं किसी चीज़ को फॉलो करता हूँ, ये अगर मैं किसी ओपिनियन को फॉलो करता हूँ, हम डिफरेंट यहाँ पे लोग हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है एक्सेप्टेंस। आप किसी मुख्तलिफ ओपिनियन, किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते होंगे, ये डिफरेंट को फॉलो करते होंगे, सबसे बड़ी बात होती है एक्सेप्टेंस। आई अप्रिशिएट यू, बट मैं दूसरे को फॉलो करता हूँ, वो बड़ी बात होती है। तो मुबशिर साहब ने कहा मुझे कि दैट वो आपकी फैमिली मेंबर है, कौन था वो। बोला कि दैट सबसे बड़ी बात है कि दैट जितना हो सके उनके लिए कोशिश पूछता सुना कि यूता है कि क्यूता करमुन खदमत, वही सबसे बड़ी इबादत है। तो तब से मैं वही चल रहा हूँ, कर रहा हूँ, वही काम कर रहा हूँ, और वही लोग आज वो हमें फॉलो कर रहे हैं। और जब भी मुबशिर साहब हमारे बारामूला में आते हैं, यू नॉट बिलीव, हम तरसते हैं इनको सुनने के लिए। जब वहां पे आते थे, बड़ा मुझे मतलब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के सारे लोग आ जाते हैं। आई वॉज नॉट अवेयर कि आप यहाँ पे आए हो, आ रहे हो, एंड इट वॉज रियली ऑनर फॉर मी। आप यहाँ पे आए, आपसे आपकी बातें सुनी, ओपिनियन सुनी, बाकी चीजें सुनी। थैंक यू सो मच सर, एंड स्पेशली थैंक्स टू द डिग्री कॉलेज प्रिंसिपल, हमारे साथ प्रिंसिपल साहब के बड़े शुक्रगुजार है, और हमारे सरताज साहब। कल ही हम प्लान करें डार्गमुलो काम करें। अनफॉर्चुनेटली किसी प्रॉब्लम की वजह से वो वहां पे ना हुआ, तो लास्ट मोमेंट हमने यहाँ पे प्रोग्राम किया। थैंक यू सो मच आप सभी का। वन मोर थिंग, थैंक यू सो मच। जैसा कि आपको पता है, आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन की तरफ से हमने आज ऑर्गेनाइज एक सेमिनार किया यहाँ पे। इट वाज अ इंटरेक्शन प्रोग्राम, ऑडिटोरियम हॉल, अनंतनाग गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज़, जिसका मकसद था कि दैट जो थीम था इस प्रोग्राम का, इट वाज मुलाकात समखुन तो बेदार गसुन जी। और जिसका मकसद ही था कि अवेयर होना, जहाँ पे हमने मीडिया फ्रेटर्निटी के लोगों को बुलाया, यहाँ पे रिलीजियस स्कॉलर्स को बुलाया, स्टूडेंट्स थे, यहाँ के लोकल आवाम थी। स्पेशली हमने नौजवानों पे फोकस किया। जो मकसद ये था कि जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन पे बात होगी, जहाँ पे हमारे मीडिया फ्रेटर्निटी के सीनियर सहाफ़ी हमारे पास आज हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद थे, हमारे रिलीजियस रहनुमा स्कॉलर हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने आगाह किया, अवेयर किया लोगों को किस तरह से एक फ़ेक न्यूज़ को आपको किस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से आपको फ़ेक न्यूज़ को शेयर करने से बचना है, किस तरह से आपको, ये जो कुछ लोग ऐसे सहाफ़ी बने हैं जिनका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है सहाफ़त से, तो किस तरह से उनसे दूर रहना है। तो सबसे बड़ी बात यही थी कि दैट लोगों को अवेयर करना कि जिस तरह से गलत चीज़ें, फेक प्रोपेगेंडा फैलाए जाते हैं बहुत सारी चीज़ों में, उसको किस तरह से, उन चीज़ों को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए, तहकीक करे पहले उन चीज़ों को रिसर्च करे पहले वो सही है कि गलत है, कि उस चीज़ की वजह से किसी की बेइज्जती ना हो, किसी की जान ना जाए। सो दैट वाज द इवेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे जो मजहबी रहनुमा हमारे यहाँ पे मौजूद भी थे, उन्होंने भी बात की इस पे, किस तरह से ये हमारे मज़हब में किस तरह से ये गुनाह है, और साथ ही साथ में कि जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है मीडिया से, क्या वो मीडिया उस पर उभर पा रही है, क्या वो बातें करती है या वो काम करते हैं। तो उससे बात हुई, क्या ऐसे प्रोग्राम मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगे? जी जनाब, हम पिछले 6 साल से हम काम कर रहे हैं, और ये हमारे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में पहला ऐसा इवेंट था। बाकी ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में हमने प्रोग्राम्स किए हैं, इंटरेक्शंस के। इट वाज आवर फर्स्ट इवेंट हियर इन अनंतनाग, सो होपफुली इट वाज गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। सो आगे भी इंशाल्लाह हमारा प्लान रहेगा कि आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। किया गया, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे? आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है सेव फ्यूचर, दिस इज़ अ यूथ पार्लियामेंट ऑफ अरबी कश्मीरी यूथ। तो इसका मेन मोटिव ये है कि जो यूथ है हमारी, इस एक प्लेटफॉर्म पे आए, अपनी ओपिनियंस, अपनी इशू डिस्कस करें विथ हमारी स्टेक होल्डर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या बाकी जो हमारे मैनेजमेंट टीम है जी, जिसका हम एक मेमोरेंडम बना के देन सबमिट इन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। आज डिफरेंट, आज मुझे लगता है कि आज रोज़ारी की वजह से काफ़ी थोड़े लोग काम, जो एक अवेयरनेस था, एक मैसेज से साउथ कश्मीर के लिए नेक्स्ट हम क्या कर लेंगे से हम यूथ के लिए, क्योंकि दिस इज़, चाहे क्रिकेट फेस्टिवल हो, स्पोर्ट्स पे हम काम कर लेंगे, एडवेंचर हो, या डिफरेंट हमारी जो है यहाँ पे, या राइटिंग को लेके, या सिंगर्स को लेके, या पेंटर्स को लेके, जितने भी ओवरऑल एक्टिविटीज़ होंगे
वो सारे यहाँ पे हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट उन पे इनिशिएट ली जाएगी.